ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਇਆ ਦਾਈ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਕੈ ਸਮਸਤ ਬੀਚ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਧ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾਧ ਹੋਤ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ
कि तुसीं पवन नूं गुरु कह दिता, मन गए कहाँ, क्योंकि पवन विचों ही शब्द पैदा होया ते शब्द ही साडा मार्गदर्शन करदा है, ते जिहड़ा मार्गदर्शन करदा है वो गुरु हुंदा। दुनिया विच अनेकां ही तरह के उस्ताद हन जिहड़े सानू अनेकां तरह के संसारी कामां दे बारे जानकारी दिंदे है, पर ਉਹ ਹਨ ਉਸਤਾਦ, ਉਹ ਹਨ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪੰਗਤੀ ਦਰ ਪੰਗਤੀ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਦਸ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। इस करके गुरु प्यारे असल विच माँ की रक्त पिता बिंद धारा, माँ का खून पिता की बिंद, इन्हां ने दोनों ने मिल करके ही साडे शरीर की उत्पत्ति की है। पर जिहड़ा जीव है ये परमेश्वर की अंश है, इनू माता पिता ने नहीं बनाया, ये परमेश्वर तो आया है। ते आ करके ਇਹਨੇ ਕਈ ਚੋਲੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਈ ਲਾਹੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਕਈ ਬਾਡੀਆਂ ਕਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸੁਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ कोई माँ धी है, कोई प्यो पुत है, कोई पति पत्नी है, हो सकता है पहला ये उल्ट होन। केतियां के बाप, केतियां के बेटे, केते गुर चेले हुए। अज किसी का प्यो है तो हो सकता है पहला असी पुत होइए, अज पुत है तो पहला प्यो होइए। को सतनाम ये साडे जीवन का लेखा जोखा चलता रहिंदा। ये जीव मरदा नहीं है, ये जीव चलता रहिंदा है, जीवन यात्रा करता रहिंदा है। पर सच्चा सतगुरु ही दसदा है कि तेरा हुण मकसद है अपने घरे जाण दा। गुरु नानक ने ही आके मार्गदर्शन किया, तुम घर आवो मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप निवारे, अपदा भई बतीत। तेरा दुखों का समा खत्म हो गया है। टेढ़ियां जूना, जहरीलियां जूना, बनस्पति दियां जूना, दरख्त सारे पहाड़ां दियां जूना, ये सब जूना च आउंदा। 84 लाख जूना च आउंदा सब कुछ। प्रीतम इस विषय ते भी कहते हैं, केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए। किन्ने वारी असी रुख बने होवांगे, दरख्त बने होवांगे, किन्ने वारी असी पशु बने। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। कितने वारी पता नहीं असी आह रिंगण वालियां जूना, सप आदि, गंडोए आदि भी बने होवांगे। ते कितने ही जन्म पंछियां दे विच असी उड़दे भी रहे। केते पंख उड़ाए,
इस तरह ये जीव है जिहड़ा समय समय ते शरीर बदलदा रहिंदा है। जीव आत्मा की गल चल रही है, बाडियां दियां नहीं। ये शरीर तो बनते ढहिंदे रहिंदे आ। इस करके इत्थे जे माँ प्यो की गल कीती है तो संसारी माँ प्यो की नहीं, साडी उस पिछोकड़ की, उस मुੱਢ की, मूल की गल कीती है जिस पानी नूं प्यो कहा ते धरती नूं माँ कहा। जिहड़ी धरती माता साडे वास्ते 36 प्रकार के फल फ्रूट भोजन फसलां आदि तैयार करदी है। एक वो माँ है जिन्हें बच्चे नूं जन्म दिता, 9 महीने अपने गर्भ विच रखदी आ, पेट विच रखदी आ। पर एक माता धरत महत, ये धरती माता जिहड़ी वड्डी है, ये मनुख नूं एंड तक रखदी है। जिन्नी मर्जी उम्र होवे असीं धरती माता ते खेडदे हां, भजदे दौड़दे हाँ, काम धंधे करते हाँ, ते जदों मर जाने आ वो माता अपने विच नहीं समा सकती, अपने गोद विच नहीं रख सकती। यह धरती माता ही सानू आपदे विच समा लैंदी आ। ये विचारा पिछले दिन ही आपां सरवण कर रहे सी। सिद्ध कहन लगे महाराज मन्निया कि ये गुरदेव गुरु ते माता पिता हन, ते फिर बच्चे दा दाई दाया भी हुंदा। जिवें राजिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ नौकर रखे ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਂਦੀ ਆ। ਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2 ਨੌਕਰ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। 2 ਦਾਈ ਤੇ ਦਾਇਆ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। संसार एक तमाशा है, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। परमेश्वर की निगाह दे विच एक खेड है ये। सानू लगदा भी फलाना मर गया, बहुत माड़ी गल हुई, फलानिया ने जम पिया, वधिया होया। परमेश्वर दे वास्ते उस तरह ही है जिवें तुसीं पिंडां दे विच वेखिया होना, जदों कोई गली विच मिट्टी की ट्राली लिया के सिट दिंदा ना, तो निक्के निक्के बच्चे वो मिट्टी के ढेर ते जाके बह जाते आ, फिर उत्थे घर घर खेडते आ। छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होके फिर उत्थे मिट्टी दीयां वट्टां करके पैर ला के उत्ते मिट्टी थप के कोठा बना देंदे आ। कहंदे लो भी अपना घर बन गया, आथण तीक बनाई जाते आ, खेडी जाते आ। ते जदों घरों आवाज़ वजदी है ना माँ की, आ जा पुत्त घरे आ जा, रोटी खा लो हुण, ते फिर वो बच्चे पता की करते हैं, जान तो पहला उस मिट्टी दे बनाए घर नूं पैर मार के ढा जाते आ। कहो सतनाम सी। तो बच्चियां ने खेड बनाई आपदी, ना बनाउण दा कोई बहुती खुशी होई, ना ढाउण दा कोई दुख होया। ये खेड परमेश्वर की थोड़ी जी वड्डी आ, वो निक्की खेड आ, ये वड्डी खेड आ परमेश्वर की। तो परमेश्वर के दर तो असीं निकले हाँ, दुनिया दे विच आए हाँ, पर हुण अखीरला जामा मानस जामा, इनू आखिरी कह दिओ, पहला कह दिओ। परमेश्वर दे मिलन दा एक जुगत बनाई परमेश्वर ने। तुम घर आवो मेरे मीत, ये भी आवाज़ां मारदा माँ दी न्याई। तुमरे दोखी हरे आप निवारे, अबदा भई बतीत। सोला साहब का पाठ करते हैं, उहदे विच भी बाबा जी याद कराउंदे आ, भलिया सदन हारा सिमरी है नानक से देह अवन। वो जिस परमेश्वर ने सारिਆਂ ਨੂੰ सदा दिता होया, दे रहा सद रहा, तैनू भी सदना है, तेरे उत्ते भी एक दिन आना है, तो तू ਉਹਨੂੰ याद कर लिया कर। सदन हारा सिमरी है नानक से देह अवन। तो इस पौड़ी दे विच मौत नूं बड़ी सुहावनी बना के विआह वर्गी बना दिता है। इहदे विच माईए पाउणा भी हैगा, इहदे विच पहुँचा चिट्ठी भी है, साहे चिट्ठी। जय कर कीरते आखिया करते का होए विचारो, तित कर गावो सोहिला सिमरो सिरजनहारो।
जिस घर दे विच परमेश्वर नूं गाया जावे उत्थे गाउणा चाहीदा। लगभग ब्याह दे गीत उत्थे ही गाए जांदे आ जिथे ब्याह रखिया होवे परिवार दे, ते परमेश्वर दे गीत गाए जा सकदे आ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। जय घर कीरत आखी है, जिथे उसकी सिफत की जा सकती है, करनी चाहिए है। करते का होए विचारो, तित कर गावो सोहिला, सिवरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरपो का सोहिला, हाँ वारी। मैं बलिहारे जावां उस परमेश्वर तो, वारी जावां। आओ आपां ओहदे गीत गाईए। गीत तो दुनिया बड़े गाउंदी है, परमेश्वर दे कोई विरला विरला गाउंदा है। आपां ओहदे गीत गाईए। तुम गावो मेरे निरपौ का सोहिला, हाँ वारी। जित सोहिला सदा सुख होए। जिन्हां गीतां नूं गाया सुख मिलना। किहड़े गीत आ ओह? पवित्र गुरबाणी, परमेश्वर दे गुण। ते जिन्हां ने नहीं गाए उन्हां बारे नौवें पातशाह कहंदे, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्मी अकार्थ कीन। कहो नानक हर भज मना, जेहि विद जल को मीन। तुम गावो मेरे निरपो का सोहिला, हाँ वारी। जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभालीन, देखेगा देवनहार। हे जीव, तू हमेशा मालक नूं याद रख। संभालना हुंदा याद रखना। जिवें तुसीं रस्ते च आउंदियां कई वारी अपनी जेब ते हत्थ मारिया होगा कि मोबाइल डिग तां नहीं पिया, क्योंकि यही कीमती चीज़ है अज बंदे दे हत्थ विच। जे गरां जाते होईए तो पैसों वाला बटूआ उसनूं भी कई बारी देखदा है। जे किसी सुनियारे कोल चले आ सोने की टूम लैके तो उसनूं भी कई बारी टोह के वेखदा डिग तां नहीं पई। इस तरह हिरदे विच माड़ा जिहा निगाह मार लिया कर कि नाम चलदा कि किते बंद तां नहीं हो गया। कहो सतनाम। इहनूं कहंदी है संभालना। नित नित जीअड़े संभालीन, तू उहनूं याद रख, तैनू वो देखूगा जरूर, तेरी हजूर संभाल करेगा। मेहरबान सह मेहरबान, सह मेरा मेहरबान। जी सगल को दे दान, तू काहे डोले प्राणियां, तुद राखेगा सिरजनहार। तो मेरे प्रीतम जी कहंदे, देखेगा देखनहार, वो तैनू देखूगा भाव संभालूगा, तू उहनूं संभालिया कर। सदड़े नित पवन, सदनहारा सिमरिया, नानक से देह अवन। एक सदा विआह दा भेजिया साहे चिट्ठी, कुड़ी वालियां ने मुंडे वालियां नूं आ जाओ भाई। ते एक साडी भी चिट्ठी निकलनी है, जिदे सवास पूरे हो गए उदे फिर जे तां नाम जपदे होए परमेश्वर नूं सदोगे तां परमेश्वर दे गण आ जाणगे। जे भाई संसारी गल कोई करोगे फिर जमदूत आ जाएंगे लैण वास्ते। जिन्हों सदोगे उही आऊगा ना। ਵਿਆਹੁਣ वास्ते उही मुंडा आउंदा जिहदे नाल गलबात पहलां होई हुंदी आ। इसे तरह जिंदगी विच असीं परमेश्वर दे नाम जपण दी गलबात करदे रहीए, परमेश्वर दी गल करदे रहीए ते अखीर वेले फिर उहनूं सद्दा देवांगे। सद्दड़े नित पवन, सद्दनहारा सिमरी है, नानक से देह अवन। एक दिन वो दिन साडे ते भी आउणा। तो ये जीव नूं परमेश्वर ने एक वधिया मौका दिता, मनुखा जामा। इस मनुखा जामे दे विच इहनूं सहूलतां बड़ियां दित्तियां। 36 प्रकार दे भोजन धरती पैदा करके दिंदी है धरती माता। सुंदर पानी दिता, सुंदर हवा दिती, सुंदर अग दिती। जिन दिया तुद पवन अमोला, जिन दिया तुद नीर नरमोला। रोज़ सुखमनी साहब के पाठ चो बीबियां जां आपां सारे जो पाठ करते हैं, सरवण करते हैं। जिस परमेश्वर ने तैनूं इन्नियां कीमती चीज़ां दित्तियां, इन्हां दी संभाल कर। ये तेरे माँ प्यो गुरु वर्गे हन, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। ये तेरे वास्ते इन्ने चंगे हन जिवें तेरा माँ प्यो है। हजे माँ प्यो तो बच्चा पासे जा सकता, पर पवन तो हवा तो सवासां तो एक मिनट भी बिना नहीं रह सकता गा। पानी तो बिना नहीं सरना, ऑक्सीजन तो बिना नहीं सरना। कई थावां ते अग है नहीं सी, वो बड़े लोग दुखी सीगे। जिन दिया तुद पवन अमोला, जिन दिया तुद नीर निर्मोला, जिन दिया तुद पावक बलना। भोजन बनाउण वास्ते अग दिती, तिस ठाकर की रहो मन सरना। सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया।
ਐਡਾ परमेश्वर उस नूं क्यों विसारदा है? उसने तेरे लिए दाई ते दाया भी तैयार कीते आ। जे आ रात ना बनाई हुंदी ते मेरा ख्याल है बंदा टिकदा ही नहीं सीगा। जिथे 100 साल जिउंदा उत्थे 50 दा ही होके तुर जांदा, 25 दा ही तुर जांदा, क्योंकि इन्हें टिकना नहीं है। बहुत सारे लोग ओवर टाइम लाउंदे है, डबल डबल ड्यूटियां लाउंदे है, पर परमेश्वर ने कृपा की 24 घंटिया दे विचों अद्धा दिन ते अद्धी रात बना दी। दिवस जिहड़ा है ये दाया है, दिवस रात दोए दाई दाया। ये दाया सानू दुनिया के खेडां विच लाई रखदा है, ते दाई रात जिहड़ी है ये सानू अपनी बुकल विच लैके रात नूं सौ जांदी है, जीवां नूं समा दिंदी है। हनेरा हो जांदा है ते आपां सारे गुरु प्यारिओ नींद विच चले जांदे हां। ये उस परिपूर्ण परमेश्वर की बनाई खेड है। उधर संजोगी धरती माता इस तरह गुरु प्यारिओ मां की कुख में जाना ये संजोग सी। जेड़ी रूह दा जेड़ी मां की रूह नाल कनैक्ट होवेगा बच्चा उत्थे ओहो ही जावेगा, ये भी याद रखियो। माता गुजरी जी ते पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज इन्हां दी तपस्या किन्नी आ। इतिहास कहता है कि 26 साल 9 महीने तो इन्हां दी तपस्या आनंदपुर साहब के भोरे च बैठ के हुई आ, बाबे बकाले के भोरे च बैठ के हुई आ। आनंदपुर साहब भी भोरा, उत्थे आके भी तपस्या की। बचपन तो बाबे बकाले तपस्या की इन्हां ने, ते उन्हां दे बराबर ही माता गुजरी दी तपस्या होगी, क्योंकि उन्होंने सबर संतोख रखिया ते उन्हां दी सेवा विच मदद कीती। उन्हां दे सिमरन भजन च इस्त्री दा बराबर हिस्सा बन जाता है। जदों मनुख भजन बंदगी करे ते इस्त्री उहदा साथ देवे, परिवार उहदा साथ देवे, उहदी भी बराबर भगती हो जाती है। ते माता गुजरी जी ने देखो फिर किन्ने सालां तक सबर संतोख रखिया, बच्चा नहीं होया कोई किन्ने साल। इत्थे अजकल कलयुग का भयानक समय, 2 साल बाद रौले पै जाते हैं, साल बाद बच्चा नहीं होंदा। बई की गल, चैकअप कराओ, डॉक्टरों को विखाओ। पर माता गुजरी जी ने सबर संतोख रखिया कई साल। इन्हां दोनों माता पिता की तपस्या इन्नी तकड़ी सी ते इन्हां दे घरे फिर पुत्र भी उहो जिहा ही आउणा सी ना, तपस्वी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां दी बहुत ज़्यादा तपस्या सी, 3.5 युग। ते जदों अकाल पुरख ने संसार के भले वास्ते इन्हां नूं भेजना सीगा, फिर जुगत तां माता पिता दे राहीं बच्चा आउंदा, शरीर धारण करदा, फिर ही काम करदा। भंड जम्मी है, भंड निमी है, भंड मंगण भी आहो। राजे अवतार गुरु सारे माँ प्यो राही आए, मात पिता बिन बाल ना होई। माँ प्यो तो बगैर बच्चा किवें हो सकदा है? बहुत लोगों ने कहानियां घड़ियां जी मिट्टी का बना के जान पाती, लकड़ का बना के जान पाती। ये किवें हो सकता है? माँ प्यो राही होवेगा। खुद परमेश्वर जी नूं, नानक जी नूं, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं भी माँ प्यो राही आउणा पिया। हाँ, माँ प्यो ओहे जिहा मिलदा जिहो जिहा बच्चे का जीवन होवे गुरु प्यारिओ। फिर ओहे जिहा अगे उहनूं माँ प्यो मिलदा। ते जद गुरु गोबिंद सिंह जी नूं भेजना कीता ते इधर गुरु प्यारिओ गुरु तेग बहादुर जी तपस्या विचों निकल के यात्रा विच चले। मात पिता मुर अलखे अराधा, बहुविध जोग साधना साधा। जब ही जात तर बैनी भय, पुन दान दिन करत बतए। तिन जो करी अल्लाह की सेवा, तांते भय प्रसन्न गुरदेवा। परमेश्वर उन्हां दे खुश हो गया, उन्होंने तपस्या इन्नी की। जब ही जात तरवैनी भय, पुन दान दिन करत बते। तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे भव लयो। तो आपां नूं अपने कर्मां दे मुताबक ही माँ प्यो मिलते हैं। जिहो जे साडे कर्म हुंदे आ उहे जे सानूं अगे माँ प्यो दे नाल मिलाप हुंदा है। खैर ये संसारी गल है, संसारी माँ प्यो है। असली माँ प्यो साडा पवन गुरु ते पानी पिता है, जिहदे नाल जुड़ना चाहिए, जिहदी संभाल भी करनी चाहिए, जिन्हां नूं सानूं प्रदूषण करन दा हक नहीं है। क्योंकि इस हवा दे उत्ते, इस पानी उत्ते साडा कल्लियां दा हक नहीं, सारे संसार दे 84 लाख जूनां दा हक है।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੋ ਖਿਡਾਵੇ, ਦੋ ਨੌਕਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾਏ ਆ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਸ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜ ਰੇ। ਇਹ ਬਣਾਏ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦਾਈ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ, ਥੱਕ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਖੇਲ ਹੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਜਾ ਖੇਲੈ ਖੇਲਾਈ ਹੈ ਮਾਰੂ ਸੋਲੇ। ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਰਾਤ ਦਿਓ ਬਾਲ ਸੁਭਾਏ, ਜਗਤ ਖਿਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਵਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਰਾਤ ਦਿਓ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜ ਜੀ ਕਿ ਉੜਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਵਨ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ, ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਆਲਾ, ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਘਰ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੰਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਸੰਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ? ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ, ਥੋੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਵਾਨੀ ਟੱਪ ਗਈ, ਬੁਢਾਪੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜੇ, ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ। ਪਰ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀਵ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਬ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਕੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਛਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਤਨੌੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਵੇਖਦਾ ਸੰਸਾਰੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਝਾਪਣ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਕੋਝੇਪਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ 'ਚ 8 ਵਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਬਜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਸ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਟੱਕਰ ਗਏ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਲੰਮਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਢੂਈ ਵਿੰਗੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਦ ਅੰਗੂਠਾ ਮੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁੱਬ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਆਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀ। ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਵੇੜੇ, ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੇਖੂਗਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤੱਤ ਗੁਣ
नाल लैके चले जाता। आपां बाज़ारां चों विचरदे हाँ, दुनिया चों विचरदे हाँ, सवेरे धोते कपड़े पाए है, शामां तक मैले हो जाते आ, क्योंकि जिथों जिथों लंघे उथों कुछ ना कुछ चक लिया आपां। को सतनाम श्री। इवें ही ये जीव भी कई जन्मां तो टेढ़ियां जोनां चों विचरदा आ रहा है। कई थावां दे उन्हां दे गुणां नूं भी चक लिआया। किसी अंदर कुत्तियां वर्गा लालच है, किसी वर्गा बघियाड़ वर्गा हंकार है, राजे शीही मुकदम कुत्ते, भाव उन्हां विचों औगण आ गए सारे। उन्हां टेढ़ियां जोनां दे औगण बंदा चक लिआया। कोई ईरखा करदा है ते मानो सप दी जहरीला जिहड़ापन है वह भी चक लिआया। ईरखा जहरीलापन है करनी। इस तरह ही गुरु प्यारे हो, ये मनुख जिमें जिमें आया इस बड़े औगण पैदा हो गए। इस नूं पातशाह बाणी च कहंदे है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याहो। काला शाह हो गया, मन मत इन्नी भर गई है, हुण ये धोतियां धोती नहीं जाती। महाराज कहंदे इनू मचा दे परे, इनू साड़ दे परे, आ तैनू नवीं मत गुरमत दे दिंदा हाँ। खनली धोती उजली ना होवई, उल्टी होवे मत बदलाहो। जिवें तो कोलू वाली लीर हथ पूंजदियां पूंजदियां तेल नाल गच हो जाती है, ते कोलू वाले उहनूं धोंदे नहीं रोज़, दूजे दिन सवेरे अग मचाउंदे आ ते सारा कुछ उहदे विच मचा दिंदे आ। को सतनाम श्री। गुरु भी साडी मत नूं साड़दा है। दिवस रात दाई दाया खेले सगल जगत, ते खेडदा होया ये जीव अनेकां तरह के कर्म करदा, चंगे ते माड़े, जिन्हां दा फिर इहनूं फल भोगना पैंदा है। फिर रोंदा है, पुकारा करदा है, बहाने मारदा है, फलाने ने दुख दिता मैनू, फलाने ने मारे। बाबा कहंदे ना ना, दद्दा दोष ना देऊ किसे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना, दूजियां नूं दोष ना दे। ये जरूर तू कदे कीता होना किसी नाल ऐसा जो को तेरे नाल ऐसा होया। को सतनाम श्री। ये ठीक है कि सानू पता नहीं लगता, हो सकता है ऐसे ही जीवन दे विच कीते हुए कर्म का फल ऐसी जीवन च मिल रहा होवे। जिस दिन किसी दिन कोई दुख आउंदा ना जीवन दे विच, कोई घटना माड़ी घटदी है, तो फिर अपनी सारी जिंदगी च निगाह मार लियो भी ये घटना जिहड़ी मेरे नाल घटी आ, कि मैं ये पहला किसी नाल कीता है? जरूर जे कीता होया तो सामने आ जाना। को सतनाम श्री। कलयुग उत्तम जुगा माहे, एह कर करे सो एह कर पाए। आता जोगी बाबा जी कहने बड़ा चंगा जिन्हों माड़ा कही जाने हो। सतयुग सत, त्रेता जगी, द्वापर पूजा चार, कल केवल नाम आधार। उच बड़ियां लंबियां उमरां भोगणियां पैंदियां, मुकदियां नहीं सी। कलयुग कुछ थोड़े समय विच ही निपटारा हो जाता है। तो इस तरह सतयुग दे विच कोई गलती करदा ते सारे संसार नूं दुख भोगना पैंदा। त्रेते विच सारे कुल नूं भोगना पैंदा। दुआपर च सारे परिवार नूं भोगना पैंदा। जिवें जादवां दे बच्चिआं ने गलती कीती, एक ऋषि नूं जाके डिस्टर्ब किया, एक छोटे जे बच्चे नूं लिया नाल, उहदे पेट ते कोला बन लिया पुट्ठा लोहे दा बाटा, उत्तों लड़कियां वाले कपड़े पाते, ते कृष्ण जी दे गुरु दे कोल जा करके कहन लगे, सानू ये दसो इस लड़की दे पेटों की होवेगा। हुण वो जानी जान सी, कहन लग्या तुसी चले जाओ, मैनू नहीं पता। कहंदे ना असीं तां पुछ के जावांगे, तू गुरु है साडे कृष्ण दा, सानू दस की होऊगा। जदों ना हटे तपाउणों ते फिर साध कहन लग्या, जाओ इहदे पेटों पैदा होवेगा, सोडी कुल दा नाश करेगा। को सतनाम श्री। द्वापर युग दे विच फिर सारी कुल नूं भोगना पिया वो दुख। जादवां दी सारी कुल इस करके खत्म हो गई। फिर तो गुरु प्यारे हो, कलयुग दे विच कहंदे जिहड़ा करदा है उस नूं भोगना पैंदा है, बाकियां नूं छड्ड के गुरु किरपा करन। खैर कलयुग दे विच अज असीं विचर रहे हां। यह कलयुग दे विच सब तो कीमती वस्तु परमेश्वर दा नाम भी है। चंगियाइयां बुराइयां वाचा धर्म हदूर। वो जिहड़ा धर्म राज है वो चंगे ते माड़े देखदा है। कर्म
वो ना जात पात देखदा, क्योंकि उत्थे जात पात है ही नहीं सी। ये तो इत्थे आके बंदे ने बनाई आ, स्वार्थी बंदे ने बनाई आ, अपने आप को उत्तम करके दूजिया नूं शूद्र बना दिता। कम्मां दे नाम हन सुनियारा, कम्मे दा नाम है सिउणे वाला, लोहारा लोहे वाला, चमियारा चम दा काम करने वाला। पर हौली हौली मनुख ने इस शरीर दे नाल जोड़ के धर दिता। कहो सतनाम श्री। स्वार्थी मनुखा ने खैर चंगियाइयां बुराइयां उत्थे चंगे ते माड़े कर्म देखे जाते हैं। ये जीव विचरदा होया अनेकां ही चंगे ते माड़े कर्म करदा रहिंदा, तां गुरु प्यारिओ अखीर जीवन शरीर तक खत्म हो जाता है, पर कीता होया कर्म खत्म नहीं हुंदा। तीन मित्र है मनुख दे। जिहड़ा संसार मित्र है ये तो जिउंदे दा मित्र है, दूजा माया मित्र है, ये भी जिउंदे दी है, मरण तो बाद किसी होर दी हो जाती है। तीजा मित्र कर्म है, ते कर्म इस जीव आत्मा दे नाल जांदा है धुर तक, इनू ओदा फल दे के कीते हुए कर्म दा फिर खत्म हुंदा है। कहो सतनाम, फिर पिछे हटदा। इस करके चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर। धर्मराज परमेश्वर की लाई हुई ड्यूटी है धर्मराज की। धर्मराज नूं हुक्म है वह सच्चा धर्म विचार, तू देख इन्हां विच सच की है ते झूठ की है, तेरी ड्यूटी है। वह दसदा फिर उन्होंने उहदे मुताबक सज़ा मिलती है। उस तरह जिवें सुनियारा जिहड़ा है सोने के गहणियां विचों सोना वेखदा है, ना उहदा सुंदर डिजाइन वेखदा कि कांटे बड़े सोहणे आ, तां नवें गहणियां नूं भी भन्न दिंदा, क्योंकि उन्हें खोट नहीं खरीदना गा। खोट सिट के केवल खरा खरा लेना है, तो परमेश्वर ने भी खोट नहीं लेना, खरा ही लेना है। खरे खजाने फाईअन, खोटे सिटियन बाहर बाहर। जिन्हां विच खोट है उन्होंने बाहर टेढ़ियां जूनां विच दुबारे सिट दिंदा है। जिहड़े खरे हो जाते हैं उन्होंने आप दे विच मिला के आपदा रूप हो जाता है। जिवें सुनियारा खरे सोने ते मोहर ला के पेटी विच रख लैंदा है, खोट नूं कूड़े वाले टूहे विच सिट दिंदा। को सतनाम श्री। गुरु कृपा करन चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर। ते फिर अगे फल जिहड़ा आपो अपने कर्मां दा मिलदा। कहने कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। परमेश्वर दी किसी नाल दुश्मनी नहीं है, किसी नाल प्यार नहीं है। इस अवस्था ते पहुंच गए ही भाई कन्हैया वर्गिया ने ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर वाली अवस्था प्राप्त की है। जे जल छकाउंदे है तो गुरु प्यारिओ मुसलमानों नूं भी छकाउंदे आ, सिखां नूं भी छकाउंदे आ, क्योंकि उन्हां दी अख दे विच परमेश्वर वस गया है। उन्हां दी रसना ते परमेश्वर आ गया। हुण वो कन्हैया पहला वाला कन्हैया नहीं रहागा, वो हरि का रूप हो गया। को सतनाम सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी देखिया सिख की अवस्था बदल गई है। शिकायतियां की गल मन के उहदी शिकायत उत्ते असर नहीं किया। वल के पुछदे आ कन्हैया तू दुश्मन नूं पानी पियाउणा? कहंदा नहीं महाराज, मैं तो किसी दुश्मन नूं पानी नहीं पियाया। कहने सिखां ने दसिया ते ड्यूटी पानी पियाउण दी लाई है, तू पानी नहीं पियाउंदा? कहने जी पियाउणा। फिर किहनूं पियाउणा? कहंदा जी मैं तो बुक वेखदा, मैनूं बुक तुहाडा लगदा, मैं तो तुहानूं ही पियाउणा। कहो सतनाम। ते 10वें पातशाह जी ने देखिया कि मेरा एक सिख अगली अवस्था च गया है, अगली क्लास च गया है, पास होया है। ते गुरु साहब ने उसनूं अगला पेपर दिता है, अगला पाठ दिता है, अगली ड्यूटी लाई है। कदे चंगा फिर जे मैनू पानी पियाउणा है तो मेरे मलम पट्टी भी कर दिया कर। कहो सतनाम सिंह। फस्ट एड उतों चली है भाई कन्हैया जी तो, ये कोई समझे तो खैर मनोवृत्तियां उत्थे रखिए, समाप्ति वाल होइए। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। परमेश्वर कहे तो दूर नहीं, किसी दे नेड़े नहीं। चंगे कर्म करांगे तो नेड़े है, माड़े करांगे तो फिर पिछे है, पासे हट जाता है। गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हादूर। जे कोई उसनूं वेखना चाहे तो भगत नामदेव जी की तरह वो हर थां तो दिखाई दे सकता है। कुत्ते विचों भी दिस गया, अग विचों भी दिस गया, घोड़े ते बैठे थानेदार विचों भी दिस गया। जे कोई देखे तो दिस सकता है, जे एवें कहे तो फिर
कोठे ते चढ़ के वाजा मारन वाली गल है। मुला मुनारे क्या चढ़े साई न बहरा होए, जा कारण तू बांग दे दिल ही भीतर जोए। अपने अंदरों लभ, रौला पाउण दी लोड़ नहीं, अपने अंदरों देख। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। ये जो दुनिया सेहर मेला दस्तगिरी नाहे, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत घाल, जिन्हां ने मुश्किलों दे विच भी नाम नूं नहीं छड्डिया, जिन्हां ने मुश्किलों दे विच भी नाम नूं नहीं छड्डिया। भाई तारू जी वर्गे, भाई सतगुरां दी हजूरी दे विच रहन वाले अनेकां सिख, भाई मनी सिंह, भाई दयाला, भाई मती दास, भाई सती दास, अज भी जिहड़े दुखां विच भी परमेश्वर नूं गुरु नूं याद रखणगे, गुरु उन्हां दे नाल है, किधरे नहीं गयागा। ते जिहड़े नहीं याद रखणगे फिर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले होर। केती छुट्टी नाल ये होर शब्द दूजे पातशाह ने लाया। इस लोक बाणी विच 2 बार लिखिया होया है। तां दूजे पातशाह ने होर भी क्लीयर करने वास्ते नाल होर शब्द ला दिता, क्योंकि लोगों को केती शब्द की समझ नहीं सी आउंदी। केती की है? केती का मतलब वो आप तर गए ते होर भी कितने ही उन्हां दे नाल तर गए। इसी है श्लोक की कुछ विचार जिन्ने को सतगुरु जी ने बख्शिश की। बाणी बड़ी बेअंत है, विशाल है, संपूर्ण विचार आप नहीं कर सकते। रहिंदियां विचारां कल दे दीवाना विसरबण करांगे। आओ समाप्ति करिए, अरदास करिए। गुरु कृपा करन, बोलदियां नेका अखर बाद घट हो जाते। सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।